Okay. In the previous class, we had learned, or rather, we had started learning about forced vibrations of single degree of freedom system. So basically, in forced vibrations, what we are doing is we have our day-to-day system. Now, as we have already understood, this figure could represent any day-to-day mechanism, any day-to-day mechanism, any machine, any artifact, anything which has got any amount of elasticity. We can convert that elasticity into a spring. Anything which has got any amount of viscous damping, we can convert it into an equivalent viscous damper with a coefficient of C. And obviously, everything has mass. So basically, when we are building a system with a spring, a damper, and a mass, it is a representative system representing some real world machinery which is vibrating. And now, instead of allowing it to vibrate freely, we are applying a harmonic force F, which is given by F naught sine omega t. So the frequency with which you are oscillating the object is omega. And eventually we found from the solution that the motion of the mass, if you represent it by y, then y is given by yc plus yp. Yc is the transient part and yp is the steady state part. So basically, if somebody asks you, I have got a forcing function, let us say f is equal to 10 sine dt. What does this mean? This means the amplitude of my forcing function f naught is 10 Newton. So if force is plotted on the y-axis and time is plotted on the x-axis, this forcing function is going to look sinusoidal like this. So this will be 10 Newton. The forcing function's amplitude. This is your F naught. And what is this 3? This 3 is your frequency. How do you find out the frequency? You know that the distance between two crests on the time axis is nothing but the time period of oscillation. And time period of oscillations can be given by 2 pi upon omega. So this is where this 3 comes in. This omega is 3. And the value here or the unit of this 3 is radians per second. This is the meaning of a forcing function. Okay. So you are saying that I have got a forcing function with amplitude of 10 newtons and a frequency of 3 radians per second. So this is what I am applying on my mass. How will my mass move? मेरा mass कैसे चलेगा अगर मैंने ये forcing function लगाई तो आपने ये कहा कि आपका mass starting में अब अपन ये प्लॉट कर रहे हैं मास का रिस्पांस प्लॉट कर रहे हैं कि मास का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो कैसा रहेगा तो इनिशियली यू से दैट देयर इज अ ट्रांजिएंट फेज व्हिच डज नॉट मेक मच सेंस इसमें कुछ एम्पलीट्यूड नजर नहीं आता इस तरीके और क्योंकि ट्रांजिएंट फेज जो है वो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है स्टार्टिंग में yc plus yp this will something be like this will not make much sense. But after some time, this transient phase will die out, and then you will find steady state vibrations like this of some set frequency and some set amplitude. बिल्कुल stable graph बनेगा इस तरह के. And now you can demarcate these phases. You can say
that up to this time everything was not making sense. So we say this is transient, and transient phase has ended after this time. इतने समय के बाद transient phase खत्म हो गया, and now the steady state phase has kicked in. अब steady state phase के अंदर आपको amplitude कितना मिलेगा? This is what you name as y naught. यहाँ पर आपको एक एम्पलीट्यूड के नाम पे कुछ तो दिखेगा. स्टेडी स्टेट में मेंटेन हो रहा है, वाई नॉट का एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली बाहर आ रहा है आपके. प्लस सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी, ये जो टाइम पीरियड आप निकालोगे ये वही 2 पाई बाय ओमेगा मिलेगा जो आपके फोर्सिंग फंक्शन का टाइम पीरियड. दैट विल बी द सेम, और रादर व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज that the omega of the steady state part is exactly the same as the omega of your forcing function. ये चीज अपन को मिलती है. This was understood by us by developing the differential equation and finding the solution. ठीक है, तो ये है फोर्स्ड वाइब्रेशन की कहानी कि अगर आप इसको स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम को अंडर डैम्पिंग में रख करके खुद से वाइब्रेट करने को कहोगे तो y वर्सेस t का ग्राफ ऐसा बनता है. ऐसा क्यों बन रहा है, ये क्यों डाई आउट हो रहा है? बिकॉज देर इज नथिंग एक्सटर्नली सप्लाइड टू इट. इस सिस्टम में एक्सटर्नल सप्लाई है ही नहीं, तो ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करेगा ही करेगा. डैम्पर भी है, स्प्रिंग भी है, सब कुछ है इसमें. ठीक है, और अगर एक्सटर्नल सप्लाई आप कंटिन्यू करते हैं तब जाके स्टेडी स्टेट आपको हासिल होती है. एंड द स्टेडी स्टेट विल कंटिन्यू as long as you keep on applying your f naught sin omega t. जब तक f naught sin omega t आपके लग रहा है तब तक ये steady state मिलती रहेगी. So this is the story. And now we come to another concept called as magnification factor. Very important. Magnification factor के ग्राफ अपन आगे जाकर के कर्व्स प्लॉट करेंगे. These are extremely important. ये आपको याद करने हैं, इसके पीछे का पूरा लॉजिक समझना है. आरटीयू में बहुत बार कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व्स फॉर फोर्स्ड वाइब्रेशन. तो ये एक ऐसा पार्ट है जिसको रट लेना है आपको. एनीवे, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. मैग्निफिकेशन फैक्टर का क्या मतलब है? डेफिनेशन: it is a dimensionless constant. Why? Because magnification factor is defined as y naught upon yst. ठीक है, y naught अभी अभी मैंने समझाया आपको क्या है. Look at the graph again. If I take a spring mass system, spring mass damper system, and I apply a harmonic force of f naught sin omega t on it, then the response of the mass is given by this graph. There is an initial transient phase, and at the end of the transient phase I will get a steady state amplitude with a constant frequency omega, and that frequency omega is the same as that of the force. In the steady state, the amplitude displayed by the mass, that is the actual distance measured from the mean, either in the upward direction or the downward direction, that is the amplitude. So we are talking about this y naught. The amplitude in the steady state of the mass when you apply f as f naught sin omega t is called as the steady state amplitude, and that is your y naught here. Now if you remember what was told in the last class, can somebody attempt to explain the meaning of yst? Anybody? अपन मैग्निफिकेशन फैक्टर को डिफाइन कर रहे हैं भाई, और मैग्निफिकेशन फैक्टर का सीधा सीधा डेफिनेशन है y नॉट अपॉन yst. तो y नॉट तो अपन को पता लग गया कि क्या चीज है. ठीक है,
स्टेडी स्टेट जब आ जाएगा फोर्सिंग फंक्शन लगाने के बाद, तो स्टेडी स्टेट में मास का जो एम्पलीट्यूड दिख रहा है वो वाई नॉट है। वाई एस टी क्या है? कल जो अपन ने बातें समझी थी उससे मेरे को कोई भी थोड़ा सा आइडिया दे दो, एनीबडी। गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हाट डू यू रिमेम्बर और व्हाट डू यू से अबाउट वाई एस टी? बताइए। नोबडी? सर वाई एस टी, सर ये मास की वो डिफ्लेक्शन है जब डैम्पनर का इफेक्ट जीरो हो जाएगा। जितेश, आपके आवाज में बहुत वो आ रहा है, मतलब बास आ रहा है जिससे क्लियर नहीं है। सर वाई एस टी वो डिफ्लेक्शन है मास की जिसके अंदर डैम्पनर का इफेक्ट जीरो हो जाएगा। जिसमें डैम्पर का? जब डैम्पनर का इफेक्ट जीरो हो जाएगा। नहीं, बट लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपने कम से कम ट्राई किया। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। अब मैं आपको एक बार वापस से समझा देता हूँ वाई एस टी क्या है। एफ नॉट साइन ओमेगा टी आप लगा रहे हो सिस्टम पे या मास पे, ठीक है? ये एफ नॉट साइन ओमेगा टी बेसिकली कैसा दिखता है? द फॉर्मेट इज समथिंग लाइक दिस एफ नॉट इज अ स्टैटिक फोर्स। इट कुड बी लेट अस से 8 न्यूटन, ठीक है? ये 8 न्यूटन हो सकती है, 10 न्यूटन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। न्यूटन में फोर्स है। साइन ओमेगा टी से जब एफ नॉट को मल्टीप्लाई करते हो तो ये एफ नॉट साइनोसॉइडल फोर्स बन जाती है। अगर ये साइन ओमेगा टी नहीं होती तो एफ नॉट और टाइम का अगर मैं प्लॉट करूं तो कैसा बनेगा? ऐसा ग्राफ बनेगा। दिस इज हाउ दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी प्लॉटेड। लेकिन जैसे ही इस एफ नॉट को साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई किया तो एफ नॉट साइन ओमेगा टी और टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। और इसमें जो एम्पलीट्यूड होगा वो 8 होगा। देखा आपने फर्क? एफ नॉट को खाली लगाने पे और एफ नॉट साइन ओमेगा टी को लगाने पे कैसा फर्क आता है, कैसी फोर्स आती है? दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स। एफ नॉट इज अ कांस्टेंट फोर्स और टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। लेकिन एफ नॉट साइन ओमेगा टी साइनोसॉइडल बन जाती है और उसका एम्पलीट्यूड 8 हो जाता है। 8 अपन ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ठीक है? सो दिस इज 8 साइन ओमेगा टी, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अब अपन वाई एस टी की बात कर रहे थे। व्हाट इज वाई एस टी? हमने ये कहा कि भाई एफ नॉट फोर्स को आप स्टैटिकली लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप उसको साइनोसॉइडली लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैंने अपने स्प्रिंग मास सिस्टम पे एफ नॉट को स्टैटिकली लगाया तो मेरा डिफ्लेक्शन कितना आएगा? दैट इज योर वाई एस टी, एंड दैट सिंपली कम्स आउट टू बी एफ नॉट अपॉन के। अब आप पूछोगे कि भाई ये एफ नॉट अपॉन के कैसे आया? बोले मेरे तो स्प्रिंग भी है, डैम्पर भी है और मास भी है। तो अगर सिर्फ स्प्रिंग और मास होता, जैसा कि अभी जितेश ने कहा कि अगर डैम्पर का इफेक्ट हटा दें तो जो डिफ्लेक्शन आएगा उसको अपन वाई एस टी कहते हैं या फिर जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन वो नहीं है इसका आंसर। डैम्पर का अगर इफेक्ट अगर आप हटा दो और इसके ऊपर अगर एफ नॉट साइन ओमेगा टी लगाओ तो आपको वाई एस टी नहीं मिलेगा। यू विल गेट समथिंग एल्स। इसके लिए आपको सिर्फ एफ नॉट लगाना पड़ेगा। अब यहां पर मजे की बात यह है कि अगर आप स्प्रिंग मास डैम्पर पे एफ नॉट लगाओ स्टैटिकली और सिर्फ स्प्रिंग और मास पे एफ नॉट लगाओ स्टैटिकली, तो आपको सेम डिफ्लेक्शन मिलेगा। अब इसमें आपको इस मास को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। यू हैव टू एलिमिनेट दिस मास ऑल्सो। सिर्फ स्प्रिंग और डैम्पर पे एफ नॉट लगाओ, या फिर अब इस केस में भी ये समझ लो कि सिर्फ स्प्रिंग पे एफ नॉट लगाओ तो भी सेम डिफ्लेक्शन मिलेगा।
क्यों? क्योंकि स्टैटिक फोर्स के लगाने से ये लाइन नीचे को खींचेगी, आपका स्प्रिंग और डैम्पर नीचे को स्ट्रेच होगा, और जब वो स्ट्रेच हो रहा होगा, यानी जब उसमें मोशन होगा, तब तो ये सी ऊपर को फोर्स लगाएगा। सी तभी फोर्स लगाता है जब मोशन होता है। अगर आप उसको किसी फोर्स से पकड़ के रखोगे तो उसका कोई फोर्स नहीं होता है, और उस केस में सिर्फ स्प्रिंग ही फोर्स लगाती है। स्प्रिंग इज द ओनली एलिमेंट दैट इज केपेबल ऑफ अप्लाइंग स्टैटिक फोर्स। डैम्पर कैन नॉट अप्लाई स्टैटिक फोर्स। आपने भाई डैम्पर में क्या है, आप खुद ही सोच के देखो, एक पिस्टन और सिलेंडर है और तेल भरा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। अब अगर आपने पिस्टन और सिलेंडर को, जिसमें कि तेल भरा हुआ है, उसको एक पोजीशन पे होल्ड कर रखा है, तो वो कोई फोर्स थोड़ी लगाएगा आप पे, देयर विल बी जीरो फोर्स। तो एक बार आपका ये डिफ्लेक्शन जितना होना था उतना हो जाए एफ नॉट के कारण, उसके बाद डैम्पर की फोर्स जीरो हो जाएगी, और जितनी भी फोर्स होगी वो सिर्फ स्प्रिंग के कारण होगी। तो स्टैटिक फोर्स के लगने पे स्प्रिंग और डैम्पर को लगाना और स्प्रिंग को अकेले लगाना एक ही बात है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, स्टैटिक फोर्स के एप्लीकेशन पर स्प्रिंग और डैम्पर को कॉम्बिनेशन में लगाना और स्प्रिंग को लगाना एक ही बात है, क्योंकि स्टैटिक फोर्स है तो डैम्पर का काम ही नहीं है उसमें, डैम्पर फोर्स ही नहीं लगाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपने वेरिंग फोर्स लगाया, यानी कि आप एफ नॉट साइन ओमेगा टी लगा रहे हो, तो बेसिकली क्या कर रहे हो, आप उसको एक बार तो नीचे खींच रहे हो, फिर एक बार ऊपर धक्का दे रहे हो, फिर नीचे खींच रहे हो, फिर ऊपर धक्का दे रहे हो, बिकॉज दैट इज व्हाट हैपेंस इन अ साइनोसॉइडल केस। इट इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रही है फोर्स, अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली एफ नॉट को स्टैटिकली ना लगा करके अगर साइनोसॉइडली लगा दिया, तो आप इसको ऊपर नीचे कर रहे हो, ये है इसका मतलब। अब जब आप कंटिन्यूअसली इसको मूव करोगे साइनोसॉइडल फोर्स लगा के, तब तो डैम्पर का भी फोर्स आएगा। सो डैम्पिंग फोर्स इज प्रेजेंट ओनली व्हेन साइनोसॉइडली द फोर्स इज अप्लाइड। डैम्पर फोर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द केस ऑफ स्टैटिक एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो ये है बाई एस टी का मतलब, कि अगर आप जो साइनोसॉइडल फोर्स लगा रहे हो उसका एक एम्पलीट्यूड तो है ही, अगर उस एम्पलीट्यूड को मैं स्टैटिकली अप्लाई कर दूं आपके उसी स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम पे, तो मेरे को कितना स्टैटिक डिफ्लेक्शन दिखेगा, उसको जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? सर एक बार वापस एंड वाला, हम्म। सर एंड में जो आपने बताया वापस बताना एक बार। कौन सा वाला? वाई एस टी। वाई एस टी, देखो, एक एग्जांपल लेके ही बता देता हूँ, ठीक है। लेट अस से माय के इज 2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। माय सी इज 3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। वैल्यूज दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। m इज इक्वल टू 1 kg। अब आप इस पे एक फोर्सिंग फंक्शन लगाने जा रहे हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन का टॉपिक है। हो गया। अब इसमें देख करके आप मुझे बताओ एफ नॉट कितना है। 10। लुक एट द डेटा एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ एफ नॉट। 10 न्यूटन, यही आता है ना एफ नॉट। अच्छा, ओमेगा कितना है? 5। 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब आप ये जानना चाहते हो कि ये वाई एस टी क्या चीज, तो मैंने कहा आप अपना फोर्सिंग फंक्शन पे जाकर के देखो एफ नॉट कितना है। तो बोला कि एफ नॉट पार्ट जो है वो 10 है, ठीक है साहब, एफ नॉट को निकाल के लिया है अलग से। फिर मैंने कहा कि अब आप एक काम करो, ये मास वास सब हटाओ, हटा दिया, ठीक है।
और अब ये फोर्स को साइनोसॉइडली मत लगाओ, स्टैटिकली लगाओ। स्टैटिकली लगाने का मतलब ये साइन वाला पार्ट हटा दो, ठीक है। अब फोर्स में क्या बचा, सिर्फ 10 बच गया, और अब सिर्फ 10 जो है ये स्टैटिक है। तो आपने इस फोर्स को यहाँ पर 10 न्यूटन को लगा दिया। क्या चीज लगाई है, एफ नॉट को स्टैटिकली लगा दिया। और एफ नॉट क्या था, एक्चुअली वो एफ नॉट साइन ओमेगा टी का पार्ट था, लेकिन उसमें से एफ नॉट लेकर के आए और आपने स्टैटिकली अपने स्प्रिंग और डैम्पर के नीचे लगा दिया। अब मैंने पहले आपको समझाया कि जब आप स्टैटिक फोर्स लगाते हैं तो डैम्पर की डैम्पर वैल्यू को होती है। लगाना और नहीं लगाना एक ही बात है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका सिस्टम अब क्या हो गया, 10 न्यूटन की फोर्स नीचे को लग रही है 2 न्यूटन पर मीटर के सॉरी स्प्रिंग के ऊपर। अब मेरे को बताओ कितना डिफ्लेक्शन आएगा इसका, दिस इज वाई एस टी। बताओ कितना आएगा, 5। 5 आएगा। 10 की फोर्स अगर आप स्प्रिंग को खींच के रखते हो तो हमेशा फोर्स डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट होता है आपका डिफ्लेक्शन। तो यस योर सर। वाई एस टी इज इक्वल टू 5 मीटर्स। और ये आया कैसे आपका, सिंपली एफ नॉट अपॉन के करने से आया, इसलिए इसकी वैल्यू एफ नॉट अपॉन के लिखी जाती है। अब आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। यस सर। तो दिस इज वाई एस टी। अब हम यहां पर मैग्निफिकेशन फैक्टर को इंट्रोड्यूस करके क्या कह रहे हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वाई नॉट एंड वाई एस टी। तो बेसिकली अगर इसको फिलोसॉफिकली देखा जाए तो ये क्या चीज है, वाई नॉट कब मिलता है एम्पलीट्यूड मुझे, वाई नॉट मुझे तब मिलता है जब मैं स्प्रिंग मास डैम्पर पे एफ नॉट को स्टैटिकली ना लगा करके साइनोसॉइडली ही लगाऊं, यानी कि एफ नॉट को साइन ओमेगा टी के साथ लगाऊं। तो मेरे को पता है कि थोड़े टाइम के बाद, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में थोड़े से टाइम के बाद में मेरे को स्टेडी स्टेट मिलेगा। और जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा तो उस स्टेडी स्टेट में जो एम्पलीट्यूड होगा ये ये वाई नॉट है। तो बेसिकली वाई नॉट हुआ क्या, y naught is the amplitude of the mass or the maximum displacement of the mass from mean when f naught is sinusoidally applied, and yst is the maximum displacement of the mass from the mean when f naught is statically applied. तो दोनों y naught और yst f naught के एप्लीकेशन से ही आए हैं, लेकिन y naught आपको तब मिलेगा जब आप f naught को साइनोसॉइडली लगाओगे, और वाई एस टी आपको तब मिलेगा जब एफ नॉट को आप स्टैटिकली लगाओगे। तो दोनों एक ही फोर्स से प्राप्त होने वाली अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स हैं, एक डायनामिक कंडीशन में और एक स्टैटिक कंडीशन में, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि वाइब्रेशन के साथ में जो एम्पलीट्यूड होगा वो तो वाई नॉट है, और बिना वाइब्रेशन के स्टैटिकली जो एम्पलीट्यूड प्राप्त होगा वो वाई एस टी। तो अब अपन ये मैग्निफिकेशन फैक्टर से ये देखना चाहते हैं कि एफ नॉट को स्टैटिकली लगाने में और साइनोसॉइडली लगाने में ज्यादा एम्पलीट्यूड कौन सा वाला देता है। तो अगर सेम फोर्स एफ नॉट को साइनोसॉइडली लगाने पे वाई नॉट की वैल्यू वाई एस टी की वैल्यू से ज्यादा आती है तो आप कहोगे कि मुझे मैग्निफिकेशन मिल रहा है, यानी कि मेरा एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। अब आप बात सोच के देखो कि 10 न्यूटन की फोर्स लेके आया मैं, उसको स्टैटिकली लगाया तो 2 मीटर मिल रहा है, और वाइब्रेटरी मोशन के थ्रू यानी कि साइनोसॉइडली लगाया तो 4 मीटर मिल रहा है। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 4/2 यानी कि 2। तो आप ये कहना चाहते हो कि ये मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर मैं 5 न्यूटन की फोर्स को साइनोसॉइडली लगाऊं तब तो मेरे को 4 मीटर का एम्पलीट्यूड मिल रहा है, और अगर वही 5 न्यूटन की फोर्स स्टैटिकली लगाऊं तो सिर्फ 2 मीटर का मिल रहा है। तो इसका मतलब वाइब्रेटरी मोशन में मेरा एम्पलीट्यूड दुगना हो रहा है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड मैग्निफिकेशन फैक्टर, कि स्टैटिकली लगने वाली फोर्स से कितना गुना
साइनोसॉइडली लगने वाली फोर्स का एम्पलीट्यूड प्राप्त होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब इसका अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको इतना सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। आई हैव constructed a very sweet and short definition for you. You simply write this: a dimensionless constant given by mf is defined as the factor by which zero frequency deflection is to be multiplied to get the steady state amplitude of vibration। अब ये बस उल्टी बात कह दी इन्होंने। इन्होंने कहा कि मैग्निफिकेशन फैक्टर वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है जिसको कि आपके जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन से मल्टीप्लाई किया जाए तो स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपनी जो अब मैंने आपको समझाया उसको सेम चीज को स्टेट करने का एक दूसरा तरीका हो गया। इफ यू मल्टीप्लाई वाई एस टी विथ एम एफ यू गेट वाई नॉट। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इज सेइंग एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट आल्सो। ठीक है। और मैग्निफिकेशन फैक्टर का ये एक्सप्रेशन एकदम से कहां से प्रकट हुआ? आपने कल की क्लास में वाई नॉट का डेरिवेशन किया था। ये देखो, ये डेरिवेशन अपन ने कल करके रखा हुआ है। ठीक है। और ये आपको याद भी करना है इसका डेरिवेशन ये आया कैसे। एवरीथिंग हैज टू बी रिमेंबर्ड। तो बेसिकली मेरा मैग्निफिकेशन फैक्टर का डेफिनेशन क्या है? इट इज सिंपली वाई नॉट अपॉन वाई एस टी। यही तो है मेरा मैग्निफिकेशन फैक्टर। तो इसमें मेरे को करना क्या है? इसके लिए मेरे को कोई डेरिवेशन चाहिए ही नहीं। इस वाई एस टी को नीचे ले आओ, यहाँ पे वाई नॉट अपॉन वाई एस टी रख दो तो क्या बचेगा राइट हैंड साइड पे? ये वाई एस टी चला जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा। So the formula for magnification factor is 1 upon under root 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r का whole square। ये अपना डायरेक्ट मैग्निफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला बन गया। डायरेक्टली मिल गया अपने को। ठीक है। वाई एस टी क्या है? एफ नॉट अपॉन आर क्या है? ये सब याद रखना है अपने को। फोर्सिंग फंक्शन की फ्रीक्वेंसी कितनी है और आपके सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसका रेशियो। दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी रेशियो स्मॉल आर। ठीक है। और ओमेगा एन क्या चीज है इसमें? आपके सिस्टम में है क्या? एक स्प्रिंग है, एक डैम्पर है, एक मास है। तो स्प्रिंग और मास को लेकर के ओमेगा एन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अंडर रूट के बाई एम। ओमेगा एन हो गया। ओमेगा आपको एफ नॉट साइन ओमेगा टी जो फोर्सिंग फंक्शन है उसकी फ्रीक्वेंसी से प्राप्त हो जाएगा। तो आर पता है। आती है बात जीटा की। जीटा का मतलब क्या होता है? इट इज सी बाय सी सी। सी कितना है? आपका स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम है तो उसका सी दिया हुआ होगा, ये आपको पता है। सी सी कहां से लाएंगे? किसी को फॉर्मूला याद है क्या सी सी का? ये भी पता है आपको। सारी चीजें पता है। ये सारी चीजें सेट कर देंगे, मैग्निफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला तैयार है आपके सामने। ठीक है। और इसको याद रखना है। वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू ऑल द इक्वेशंस दैट आर बॉक्स्ड अप इन माय नोट्स, यानी कि ऐसे बक्से में बंद किए हुए जितने भी इक्वेशंस हैं वो सब आपको अलग से नोट करने हैं और रटने हैं, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज होती है। और उस टाइम पे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उस टाइम पे आपके पास में इन सब चीजों को डिराइव करने का ऑप्शन नहीं है। आप ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे वाइब्रेशन के डेरिवेशंस कितने लंबे लंबे हैं। तो एग्जामिनेशन में डेरिवेशन करके मैं निकाल लूंगा, ये गलतफहमी मत पालना। इक्वेशंस रटने हैं आपको, वरना काम नहीं चलेगा। ठीक है। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन फैक्टर। इट इज गिवन बाय y नॉट अपॉन वाई एस टी एंड the value is obtained by applying this formula। okay, अब अपन नेक्स्ट चीज पे आते हैं, समथिंग कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व्स। ये क्या चीज है पहले तो ये देखें। these are dimensionless plots of magnification factor versus frequency ratio। तो बेसिकली अगर मैं ये पूछूं कि भाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व्स क्या है, तो सबसे सिंपलेस्ट आंसर होगा कि ये जो इक्वेशन दिख रही है ना,
इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब इसका हुलिया एक बार पूरा देखो, मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ ताकि एक पेज में आ जाइए। ये देखो, दिस इज हाउ योर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व्स लुक, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, आर लेते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी रेशियो, दिस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज आर। ठीक है, क्योंकि आपको दिख ही रहा है मैग्निफिकेशन फैक्टर इज अ फंक्शन ऑफ आर, आर का फंक्शन है। तो आर के अगेंस्ट मैग्निफिकेशन फैक्टर को प्लॉट कर रहे हो, और वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हो, वाई नॉट अपॉन वाई एस टी, विच इज नथिंग एल्स बट योर मैग्निफिकेशन फैक्टर एम एफ। ठीक है, अब इसमें देख करके आपको खूब सारी चीजें रीड करनी आनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व्स के साथ में फेस एंगल प्लॉट भी आती है। अब ये फेस एंगल एकदम से कहां से प्रकट हुआ, अभी तक आपको जो समझाया था वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या है, व्हाट इज दिस फेस एंगल, इसको भी समझेंगे अपन। आपने कल की क्लास में ये भी डिराइव किया था, ये देखिए, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 zeta r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ये फाई क्या है, एक बार अपन फाई को समझते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व्स पे जाते हैं। ठीक है, आपने जब वाई पी का रिस्पॉन्स रिकॉर्ड किया था, यू हैड एज्यूम्ड दैट इट वाज वाई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इस एजम्पशन पे स्टार्ट किया, एंड देन इवेंचुअली यू फाउंड आउट दैट वाई नॉट इज इक्वल टू वाई एस टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो वाई नॉट था, और फाई क्या था, ये आपने कल निकाला था, डेरिवेशन इसका किया है अपन ने। ये दो चीजें, तो आपने कहा कि भाई मेरे को आर पता है, जीटा पता है, वाई एस टी पता है, सारी चीजें पता है, तो वाई नॉट निकालो इस फॉर्मूले से, यहां रख दो, फाई निकालो इस फॉर्मूले से, यहां रख दो, तो मेरे को अब पूरा वाई पी पता है। और ये वाई पी क्या चीज है, वाई पी इस सॉल्यूशन का पार्ट है। अब इसमें पते की बात तो ये है कि ट्रांजिएंट फेज जब खत्म हो जाएगा, तो वाई में से वाई सी तो वैसे ही खत्म हो जाना है, फिर थोड़े से टाइम के बाद जब स्टेडी स्टेट आएगा, तो आपका पूरा सॉल्यूशन सिर्फ वाई पी ही रह जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अब वाई सी वाई पी को हटाओ पिक्चर से, आप तो सीधे कहो माय सॉल्यूशन इन स्टेडी स्टेट इज सिंपली गिवन बाय वाई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, और आपने कहा कि ये जो स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन मिला है, ये कौन सी फोर्स के लगने पे मिला है, आपने कहा कि मेरी फोर्स साइनोसॉइडल है, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, और अब मैं एक स्टेटमेंट कहने जा रहा हूं, आप उस स्टेटमेंट को परखना और मेरे को बताना कि वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। मैं जानबूझ करके आपको गुमराह भी कर सकता हूं। ठीक है, सो लिसन केयरफुली टू माय स्टेटमेंट। ऑन अ स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम I applied a sinusoidal forcing function of f naught sine omega t. And as a result, once the steady state was achieved, the response of the system was given by y naught sine omega t minus phi, where y is the displacement of the mass at any given instant of time t, and f is the force acting on the mass at any given instant of time t. देखो यहां तक मैंने आपको कोई गुमराह नहीं किया है, ये तो मैं अभी से बता देता हूं, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। नाउ लिसन केयरफुली, my displacement lags the applied force by an angle of phi। ये है मेरा स्टेटमेंट, ट्रू है या फॉल्स है। The displacement of the mass lags behind
the applied force by a phase angle of phi. ट्रू और फॉल्स? यस सर ट्रू है। ट्रू है। अब यहां से अपन को इस फाई का रोल समझ में आ गया। अगर अपन ने ये एक्सरसाइज नहीं की होती और अगर मैं आपको सीधे ये बता देता कि भाई ये है, देख लो फाई का ग्राफ ऐसे ऐसे बनता है, तो आप रट भी लेते, एग्जाम में भी रिप्रोड्यूस कर लेते, लेकिन ये कभी नहीं समझ पाते कि ये आखिर चीज क्या है। तो अब मैं एक बार वापस से समराइज करता हूं कि व्हाट इज फाई। When I apply a sinusoidal forcing function f naught sin omega t, after some time the steady state comes up, and in the steady state my mass is oscillating or vibrating about the mean position with an amplitude of y naught and at the same frequency as that of the forcing function. But since this is the displacement, it will always lag behind the forcing function which I actually applied to the system. And the amount of phase angle by which the resulting displacement will lag behind the applied function f is called as phi. तो कितने अमाउंट से मेरा रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड फोर्स के पीछे चलता है या लैग करता है, उसको फेस एंगल फाई कहते हैं। और उसका फॉर्मूला ये है, इस तरीके से ये फेस एंगल निकाला जाता है। तो अब अगर मैं आपको फेस एंगल प्लॉट्स दिखाऊं और बोलूं कि भाई ये कौन से फॉर्मूले से प्लॉट किया गया है, तो आप बोलना ये इस फॉर्मूले से प्लॉट किया है। फाई को tan इनवर्स ऑफ 2 जीटा r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर लिया है, और x एक्सिस पे अगर मैं r ले लूं और y एक्सिस पे फाई ले लूं, तो देखो फाई इज अ फंक्शन ऑफ r, जीटा तो कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है। तो फाई एज अ फंक्शन ऑफ r अगर प्लॉट किया जाए तो फेस एंगल प्लॉट मिलता है। और अगर मैग्निफिकेशन फैक्टर, अब इस YST को नीचे ले आओ, मैग्निफिकेशन फैक्टर वर्सेस R एज अ ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व्स मिलते हैं। अब अपन आते हैं अपने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व्स पे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात तो है, इस इक्वेशन को देखो वापस से, लेट मी राइट द मैग्निफिकेशन फैक्टर फॉर यू। मैंने कहा मैग्निफिकेशन फैक्टर इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी रेशियो R। बिल्कुल सही है। कैसे? बिकॉज मैग्निफिकेशन फैक्टर इज गिवन बाय y नॉट अपॉन YST, ठीक है। फंक्शन ऑफ R कैसे हुआ ये? इट इज गिवन बाय 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर। और जीटा कांस्टेंट है तो इसलिए जीटा का फंक्शन तो है, मगर जीटा चेंज नहीं हो रहा है, तो mf जीटा के साथ में एक केस में तो चेंज नहीं होगा। अब आपको एक इक्वेशन दे दी मैंने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2x, और बोला कि भाई क्या y x का फंक्शन है? बोला हाँ साहब बिल्कुल है। तो बोला कि अब एक काम करो, x और y का ग्राफ बनाओ। तो बोला ठीक है साहब, y ले लिया, x ले लिया। अब आपने क्या किया, लाइन बना दी। बोला कि ये रही मेरी ग्राफ आ गई। तो एक लाइन बनी, एक ग्राफ बना, या फिर अगर 2x स्क्वायर ले लेते हैं तो इसमें कर्व आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। नॉन लीनियर जैसे ही हो गया, जैसे ही डिग्री बढ़ाई तो स्ट्रेट लाइन से कर्व में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जैसे जैसे आप डिग्री बढ़ाते जाते हो पॉलिनोमियल बनता जाता है। लेकिन जो भी है एक ग्राफ बना ना, फिर ये क्या चीज है? अनदर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाई आर देयर सो मेनी ग्राफ्स। क्या ये इसके कारण है क्योंकि ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये अंडर रूट स्क्वायर वेयर है, इसके कारण तो नहीं है कहीं ऐसा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको समझा दूं। तो अगर आप एक जीटा की वैल्यू को फिक्स कर लें, लेट अस से यू फिक्स द वैल्यू ऑफ जीटा एट 0.1, और उसके बाद मैग्निफिकेशन फैक्टर और आर के प्लॉट को ग्राफिकली बनाएं,
तो एक ही ग्राफ मिलेगा। बस, खत्म। फिर ये खूब सारे कहां से आए? लुक एट these different graphs are obtained for different values of zeta. देख रहे हैं आप? अलग अलग जीटा की वैल्यू रखोगे तो अलग अलग ग्राफ मिलेंगे। अब इसको जरा परखते हैं कि अलग अलग जीटा पे कैसे ये चेंज हो रहा है ग्राफ। अगर जीटा 2 है, अच्छा जीटा 2 होने का मतलब मेरे को कोई जरा जल्दी से बताओ, कौन से टाइप की डैम्पिंग है? ये ओवर डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है कि अंडर डैम्प्ड है? ओवरडैम सर। ओवर डैम्प्ड है। whenever the value of zeta is greater than 1, it is over damped. When zeta equal to 1, it is critically damped, and when zeta is less than 1, it is under damped. ठीक है। अब अपन इस तरह से देख रहे हैं कि मैग्निफिकेशन मिल रहा है क्या? मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। वाई नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड व्हेन एफ नॉट साइन ओमेगा टी इज साइनोसॉइडली अप्लाइड, एंड वाई एस टी क्या है? व्हेन द सेम फोर्स एफ नॉट इज स्टैटिकली अप्लाइड। तो स्टैटिक एप्लीकेशन वर्सेस वाइब्रेटरी एप्लीकेशन में एम्पलीट्यूड का फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताता है मैग्निफिकेशन फैक्टर। ठीक है। तो अब मैंने ये देखा कि मैग्निफिकेशन फैक्टर 1 जो है ये एक इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है। अगर मेरा मैग्निफिकेशन फैक्टर लेस देन 1 है, इसका क्या मतलब है? कोई समझा सकता है? जो भी आपको लॉजिक समझ में आया हो अभी तक, इससे मेरे को कोई एक जना थोड़ा सा अपना अटेम्प्ट करे और बताए कि मैग्निफिकेशन फैक्टर का 1 से कम होने का क्या मतलब है? वाई एस टी वाई नॉट वाई छोटा है, वाई एस टी वाई नॉट से बड़ा बड़ा है। है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एफ नॉट फोर्स प्रैक्टिकली को लगा। स्टैटिकली लगाऊं तो वो वाइब्रेटरी केस से ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है। और उस केस में ये जो लाइन है आपकी, मैग्निफिकेशन फैक्टर इक्वल टू 1 वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उससे नीचे आपको जितने भी कर्व्स दिख रहे हैं ये सारे वो केसेस हैं जिसमें स्टैटिक एप्लीकेशन ऑफ लोड इज ग्रेटर देन वाइब्रेशन। और जितने भी कर्व्स आपको एम एफ इक्वल टू 1 से ऊपर दिख रहे हैं, वो सारे वो केस हैं जिसमें वाइब्रेशन वाला केस का एम्पलीट्यूड स्टैटिक वाले केस के एम्पलीट्यूड से ज्यादा है। एक ही फोर्स के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं अपन। जैसे 2 न्यूटन का फोर्स लेके आए और उसको सिर्फ खींच के पकड़ा, तो कितना डिफ्लेक्शन मिला? वाई एस टी मिला। और अगर उसी 2 न्यूटन फोर्स को लेकर के अगर मैं मास को ऊपर नीचे हिलाऊं, तो मेरे को कितना एम्पलीट्यूड मिलेगा? तो इतना एम्पलीट्यूड मिल रहा है, ये देखो। इतना एम्पलीट्यूड मिल रहा है, ये देखो। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर। ये है इसका मतलब, इस इन कर्व्स का मतलब ये है। ठीक है। तो अपन इन कर्व से ये पता लगा सकते हैं कि वाइब्रेशन के दौरान मैग्निफिकेशन हो रही है कि एम्पलीट्यूड की, whether the amplitude is getting magnified or not. This is what you understand from this. And for different values of zeta, you get different curves. For any one particular value of zeta, the other curves will disappear. जैसे कि आपने zeta को 0.125 पे सेट कर दिया, तो ये कर्व गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, और इसके साथ ही सारे गायब हो जाएंगे। सिर्फ एक कर्व रह जाएगा, ये वाला। ओनली दिस विल रिमेन। और अगर आपने जीटा इज इक्वल टू 0.25 सेट कर दिया, तो बाकी के सारे कर्व चले जाएंगे और सिर्फ ये वाला कर्व रह जाएगा। ये याद रखना है आपको। एट एनी वन इंस्टेंस ऑफ द सिस्टम, आउट ऑफ दीज मल्टीपल ग्राफ्स, ओनली वन विल बी एप्लीकेबल एट अ टाइम। ये सारे ग्राफ्स एक साथ एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये तो अपन ने एक साथ बना दिए हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही ग्राफ काम में आएगा। ठीक है। अब इसमें कुछ लर्निंग्स हैं आपकी, ये आप खुद पढ़ें।
Why are we plotting dimensionless? Important observations to be remembered for frequency response curves. When zeta is 0, यानी कि undamped condition, and frequency ratio is 1, जब भी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन होता है, यानी कि ओमेगा बाय ओमेगा एन 1 होता है, तो अपन उसको रेजोनेंस बोलते हैं। वी गेट एक्सट्रीमली हाई वैल्यू ऑफ वाई नॉट। ठीक है, तो अब आपको दो कंडीशन बताइए। बोला कि जीटा को 0 कर दो, तो कर्व कौन सा हो गया? ये रहा, ये जा रहा, और ये पता नहीं कहां जा रहा है, ऊपर कहीं इसका कोना तो मिल ही नहीं रहा है। दैट मीन्स इट इज एक्चुअली गोइंग टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जाकर के इसका टिप बनेगा ऐसे, इसका ज्वाइनिंग ही नहीं मिल रहा है, इतना हाई है एम्पलीट्यूड। देखा आपने, वाई नॉट इज सो हाई कंपेयर टू वाई एस टी कि भयानक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मैग्निफिकेशन हो गया। और ऐसा कब होता है? रेजोनेंस की कंडीशन पे। देखो अब आप ये इस लाइन को फॉलो करो कि ये हो क्या रहा है। You will find that this is happening at r equal to 1। r equal to 1 का मतलब ओमेगा जो है वो ओमेगा n के बराबर हो गई। और अपन की बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लासेस में जाकर के आप जरा चेक कीजिए कि रेजोनेंस का क्या मीनिंग होता है। इट इज दैट कंडीशन इन विच द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी दे बिकम इक्वल टू ईच अदर। फोर्सिंग फंक्शन की फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो रेजोनेंस की कंडीशन आती है। ठीक है, और रेजोनेंस की कंडीशन में जब जीटा भी 0 कर दिया जाए, यानी कि एक ही तो चीज है जो कि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही है, डैम्पर, अगर वो भी 0 कर दिया तो आपका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड का मतलब सिस्टम विस्टम को तोड़ फाड़ करके पूरी चीजें बाहर आ जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगा सब कुछ। दिस इज अ स्टेट ऑफ केओस, भयानक तबाही का स्टेट है ये। तो ये समझ में आ गया अपन को कि जीटा को 0 करें और रेजोनेंट कंडीशन भी लेके आ जाएं तो फिर सिस्टम डैमेज हो जाएगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, एनी मैग्निफिकेशन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पीक्स is observed only for zeta less than 0.707। इसका क्या मतलब है? ये देखो, जैसा कि मैंने बताया मैग्निफिकेशन हो रहा है, ये आप तभी कहोगे जब mf की वैल्यू 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो अब आप बाकी के सारे कर्व्स देखो, जीटा की वैल्यू 2 है तो सारे फ्रीक्वेंसी रेशियोज के लिए कर्व नीचे को ही चलता जा रहा है, यानी कि कोई मैग्निफिकेशन तो हो ही नहीं रहा। एट ऑल वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी रेशियो, ये देखो 1 पे, 2 पे, 3 पे, किसी भी फ्रीक्वेंसी रेशियो की वैल्यू पे देखोगे अगर जीटा 2 है तो मैग्निफिकेशन नहीं मिलेगा। ऑल वैल्यूज आर लेस देन 1। जीटा इक्वल टू 1 पे देखो कर्व कैसे जा रहा है, यूं जा रहा है, इस पे भी कोई मैग्निफिकेशन नहीं है। फाइनली जीटा को कम करते चलो, 2 2 था, फिर 1.5 होगा तो इसके बीच में कहीं कर्व आएगा, 1 था, फिर उसके बाद 0.8, 0.8 से थोड़ा सा और कम हुआ, और फाइनली जैसे ही जीटा की वैल्यू 0.707, ये क्या चीज है 0.707? एज अ रेडिकल इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/√2। जैसे ही आप अपने जीटा की वैल्यू 1/√2 करते हैं तो आप एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन देखते हैं कि आपका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है वो एम एफ इक्वल टू 1 कर्व के टेंजेंशियल होकर के जस्ट टच होकर के निकल गया। अब आपने जीटा की वैल्यू को जैसे ही हल्का सा भी ग्रेटर देन 1/√2 रखा तो आपको अब पीक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, ये पीक है, ये ऊंट की पीठ जो बनती है ना, दिस इज स्मॉलर कॉल्ड एज देन, अ पीक। ठीक है, जब 1/√2 से छोटा रखेंगे तो मिलेगी ना। सॉरी, व्हेन जीटा इज लेस देन 1/√2। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, क्योंकि अपन जीटा को कम करते जा रहे हैं, ऊपर पीक तभी मिलेगा जब जीटा कम करते जाओगे। ठीक है, तो अब देखो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जीटा लेस देन 0.707 और 1/√2 यू विल गेट अ पीक, ऑलवेज यू विल गेट अ हम्प लाइक दिस, सारी वैल्यूज पे। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हमने देखा। ठीक है, अब उसके बाद हम ये जानना चाहते हैं, अच्छा एक और ऑब्जर्वेशन देखो, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ जीटा
the maximum amplitude is not obtained at r equal to 1 as one would generally expect. भाई आप ये क्या मानोगे, चलो मैंने जीटा एक वैल्यू पे सेट कर दी, ठीक है, बोला भाई जीटा इज इक्वल टू 0.25, ये ले लिया। अब आपसे कोई पूछे कि चलो गेस करो कि कौन सी फ्रीक्वेंसी रेशियो पे आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा, तो आपको एक चीज तो पहले से रटी हुई है, जब भी फ्रीक्वेंसी रेशियो 1 होता है तो उस केस में सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन होता है। ये देखो, ये केस भी अपन ने देखा था, r इक्वल टू 1 पे जीटा की वैल्यू जब 0 होती है तो मैक्सिमम आता है, लेकिन जीटा की वैल्यू 0 नहीं हो तो क्या ये हम्प यहां नहीं बनना चाहिए था? ये देखो, ये हम्प यहां बन रहा है, हम यहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये हम्प यहां बन रहा है, हम यहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी कि रेजोनेंस को अपन हमेशा सबसे खतरनाक मानते हैं। अपन ये मान के चलते हैं कि जब आर की वैल्यू ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू जब 1 होगी तो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड मिलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व्स इस चीज को नकार देते हैं, आपको सामने एक अलग ही पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। दे आर शोइंग कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जीटा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 नहीं हो अगर जीटा की वैल्यू, तो बाकी सारे केसेस जो हैं वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कर्व नहीं दिखा रहे मैक्सिमम, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाली लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट में अपना मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसा होता है। तो बोला कि चलो अब अगर ऐसा है तो अब मुझे बताओ कि फिर कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ये मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि ये तो जानना है ना कि भाई मैक्सिमम कहाँ एम्पलीट्यूड हो रहा है। सो नाउ यू आर इंटरेस्टेड, नाउ यू आर इंट्रीग्ड कि भाई अगर यहां पर मेरे को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं मिल रहा तो कहां मिल रहा है। तो ये पता करने के लिए आप क्या करोगे, बेसिकली देखो ये प्लॉट क्या है, ये मैग्निफिकेशन फैक्टर वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो है। तो अगर आपको मैक्सिमा निकालना है, इसका पीक का लोकेशन निकालना है कि भाई ये किस लोकेशन पे आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिफरेंशिएट योर मैग्निफिकेशन फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू आर एंड पुट इट इक्वल टू 0। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है, और पीक का लोकेशन इस तरीके से निकाला जाएगा। अब ये डिफरेंशिएशन मैंने आपके लिए यहाँ पे कर रखा है, यू अप्लाई द डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और ये पूरा डिफरेंशिएशन मैंने इक्वल टू 0 किया है, और ये पता किया कि आर की कौन सी वैल्यू पे ये प्राप्त होता है। आर की वैल्यू जब अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर होती है तो पीक मिलता है, ये पता किया मैंने, और आर क्या है, ओमेगा बाई ओमेगा एन। सो नाउ आई हैव अ न्यू फॉर्मूला फॉर ओमेगा पी। ये ओमेगा पी क्या है, इस ओमेगा एन को मैं यहां पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने ये कहा कि जब मेरी एक्सटर्नल एक्साइटेशन की फ्रीक्वेंसी ओमेगा एग्जैक्टली ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर के बराबर होगी, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी रेशियो आएगा ओमेगा बाई ओमेगा एन, यानी कि ये 1 माइनस 2 अंडर रूट जीटा स्क्वायर पे मुझे पीक मिलेगा। दिस इज द इक्वेशन फॉर पीक फ्रीक्वेंसी। इसीलिए चूंकि ये पीक फ्रीक्वेंसी का मतलब है किस फ्रीक्वेंसी पे मुझे पीक मिल रहा है, इसीलिए इसको पीक फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है। और ये इक्वेशन एक दूसरी एक जानी मानी इक्वेशन से बहुत मिलती जुलती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी इक्वेशन है। डैम्प्ड नेचुरल वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और पीक फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। ये देखो, इन दोनों को साथ साथ रखना और याद करोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ये ओमेगा डी क्या है, इसका फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब ही नहीं है, ये फ्री वाइब्रेशंस में आती है। जब आपने फ्री वाइब्रेशन कराई तो डैम्प्ड सिस्टम की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, ये होगी। जब आप फोर्स्ड वाइब्रेशन कराते हैं तो सिस्टम में कौन सी फ्रीक्वेंसी पे पीक हासिल होता है, इस फ्रीक्वेंसी पे हासिल होता है।
ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, काफी मिलती जुलती इक्वेशंस हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ये डब्ल्यू पी क्या है और ये डब्ल्यू डी क्या है, ठीक है। बाकी इसके अंदर ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को आप एक बार खुद पढ़ें। ये बेसिकली आपको प्रूव करने को कहता है कि पीक जीटा ग्रेटर देन अंडर रूट 1/2 पे नहीं मिलता। तो अब आपके पास में पीक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, तो उसको लेकर के एक छोटा सा प्रूफ है, यू रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर हेलो। ठीक है, एक सेकेंड। So we will stop the lecture of सर एक सेकंड, एक क्वेश्चन था सर। हाँ पूछो। वो जो क्वेश्चन था ना अभी लास्ट में जो आपने दिखाया था इम्पोर्टेंट है जो, हाँ सर उसके अंदर सर पीक तो मिलता है ना, अपन को मैग्निफिकेशन नहीं मिलता, तो क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। ये देखो, इसका ग्राफ देखो, तब क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना आपसे पूछ रहा है, ये प्रूफ करो कि जीटा की वैल्यू अगर 0.707 से कम हो, ये कर्व देखो, ठीक है, इससे कम वाली जो जीटास है, ये है, ये है, ये है, सिर्फ उन्हीं पे हम्प मिलेगा, उससे ज्यादा वाले पे हम्प आता ही नहीं है। ये देखो, ये ऐसे ही फ्लैट लाइन हो गई है, ये नीचे को जा रहा है हम्प, यानी कि इस तरह का ये हम्प नहीं मिलेगा। और मैग्निफिकेशन भी नहीं है उसके ऊपर, मैग्निफिकेशन होना मतलब हम्प मिलना, सीधी सी बात है। क्योंकि सारे कर्व देखो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, स्टार्ट तो 1 से ही हो रहे हैं सारे कर्व। अब 1 से स्टार्ट होने वाले किसी कर्व पे हम्प बनता है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन हो ही गया ना। और अगर हम्प नहीं बनता तो मैग्निफिकेशन नहीं है, देख लो, ये है इसका मतलब। क्लियर हुआ? हम्प बना तो पक्का मैग्निफिकेशन, हम्प नहीं बना तो पक्का नो मैग्निफिकेशन, ये तो शर्तिया बात है। ठीक है, क्लियर हो गया? सर किसने पूछा था क्वेश्चन ये वाला? अक्षत, हाँ अभिषेक, क्लियर हो गया क्या? अक्षत ने सर, अक्षत को था, है अक्षत ने पूछा था सर। अक्षत, अक्षत क्लियर हो गया आपको? यस सर। ओके, ठीक है। सो वी स्टॉप दिस टॉपिक हियर। अब इस नोट्स को आप पढ़ें। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट एक बात यह है कि आज आपका एग्जाम जो होगा, लैब एग्जाम, उसमें ए ग्रुप के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, बी सेक्शन के लिए नहीं है ये अनाउंसमेंट। दिस इज एन अनाउंसमेंट ओनली फॉर ए सेक्शन। ए सेक्शन के A1 A2 दोनों के सारे स्टूडेंट्स को आज विकास गौतम जी की लैब में एग्जाम देना है। ठीक है, ये मैंने आपको नोटिस पहले ही दे दिया था क्लासरूम में लिख करके। आपको मेरी लैब में नहीं आना है। ऑल ऑफ यू विल बी फेसिंग एग्जाम ऑफ डॉक्टर विकास गौतम। कल A1 A2 के सारे स्टूडेंट्स को मेरी लैब में एग्जाम के लिए आना है। ठीक है, आपका शेड्यूल जो टाइम टेबल है वो अदरवाइज दिखाएगा, लेकिन आपको कल एग्जाम देने के लिए द कंप्लीट ए सेक्शन हैज टू कम एंड लॉग इन टू वाइब्रेशंस क्लास। और एग्जैक्टली 7:55 पे आपका पेपर रिलीज हो रहा है, तो आप टाइम पे लॉग इन करके रहें। 1 घंटे का पेपर है, और मैंने थोड़ा सा आपको ट्रिक करने के लिए थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, सो यू विल नीड योर माइंड्स टू बी शार्प एंड यू विल नीड एज मच टाइम एज पॉसिबल। तो इसलिए लेट ना हो, और लेट सबमिशन भी अलाउड नहीं है। तो चीटिंग वीटिंग करके टाइम वेस्ट ना करें, जितना आता है उतना आप ईमानदारी से अटेम्प्ट कर लें। और अगर नहीं भी आता तो आप प्रोसीजर लिखिए, डायग्राम्स बनाइए, जो कुछ भी आता है आपको। डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के अंदर कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट